back to my channel. I hope आप सब घर पे हो, बहुत safe and protected हो. And today I want to sit down with you and give you one big news, which is that any one of you who has asthma or any respiratory illness, guys, you can be treated and you can stay without the inhalers and without the medicine for the rest of your life. I got to know about this when I read this book, which is The Asthma Cure by Miss Tarika Ahuja. I am one of those very lucky ones क्योंकि मैं इनको मिली हूँ one on one and I meet her almost once in every 3 months because मैं इनसे treatment ले रही हूँ and I feel so much better and that is the reason why I wanna spread the word out there जिनको भी ये problem है that you can also be treated. So you can have a one-on-one word with her. Let me know if you are interested. Just write me in the comments down below if you are interested to speak to her. She'll help you. I promise you that. The second thing is that I want to give you 5 ways of reducing, the incidence of an attack. Number 1, know your environmental triggers. आपको ऐसी बाहर कौन सी चीज़ है जिससे आपको अटैक आने का चांस होता है. For example, any pollens, harvesting season, cigarette smokes, any particular odor या फिर smell जिससे आपका asthma exaggerate होता है. Know them कि आप उन चीज़ों को already precaution पे रखो. अगर आप एक बार एक्सपोज हो गए हो, just understand that आपको अगली बारी से जो भी वो ट्रिगर है उससे पहले ही अपना प्रिकॉशन ले लेना है so that you don't have an attack. Number 2, food. आपको कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है. Fine. The first one is that you don't have to take nightshade vegetables. Nightshade vegetables are potatoes, tomatoes, eggplants, which is also bangan. The fourth one is bell peppers. So don't take them. They are not good for you. The second thing what you don't have to take is any kind of white flour or मैदा. मैदा से आपके जो lungs हैं उनमें mucus build-up हो जाता है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है. Don't take that. The third thing what you don't have to take is dairy products. Dairy में इतने ज़्यादा pesticides होते हैं like urea, what not, कि उनकी shelf life बढ़ जाए. Stop taking dairy. Don't take curd. Don't take cheese. Don't take butter. Just try to refrain yourself at least 2 weeks के लिए करके देखो. You'll have a tremendous change in your health. And the last one is sugar. Sugar is so bad, guys. It's so bad, but it's so difficult to leave it, and I absolutely understand. किसी भी चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल है unless you find a substitute. So find a substitute like dates, खजूर. आप substitute find out करो जैसे कि jaggery, which is good, or else any raw organic sugar like coconut sugar. आप जब जैसे इन चीज़ों को उससे substitute कर दोगे, you won't feel कि आपने sugar. The third thing, liquor, wine, beer, whiskey, any kind of alcohol. इन सब में सल्फाइड्स होता है which is used as a preservative कि ये बहुत ज़्यादा देर तक चले. Most of the asthmatics are allergic to sulfides. तो जब भी वो लेते हैं उनको एक allergic reaction हो जाता है. Also whenever you are taking any kind of an alcohol और जब आप लेट जाते हो सोने के लिए, so all of that acid it comes ऊपर की side पे, it moves into your breathing tubes and it causes swelling of the tubes and causes mucus production. तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है. Try to limit your liquor intake as much as possible. The fourth thing is stress. अटैक कभी भी हमेशा बाहर की चीज़ से नहीं होता है जो आप खाते हो और जो आप स्मेल कर लेते हो. It is also internal. Any kind of stress also leads to an attack. और आपको पता होगा like anxiety attacks के जैसे that you also have stress induced asthma. कभी भी कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा वरी करने लग जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है. सो मैनेज योर स्ट्रेस विथ वट एवर यू थिंक वर्क्स बेस्ट फॉर यू. आई वुड रेकमेंड सबसे पहली चीज़ है ऑलवेज नो कि आपको क्या चीज़ स्ट्रेस कॉज करती है. इज़ इट ओवर पैक कैलेंडर, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर आप अपने आप से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका कोई एग्ज़ाम है. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड आपको किस चीज़ से स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से आपको अटैक आ जाता है. द सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस विद इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप. अपनी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
सो मेक श्योर यू हैव अ वेरी वेरी गुड नाइट स्लीप। और जब भी आप सोने लगे हो उससे एटलीस्ट 4 आवर्स पहले आपको अपना खाना खा लें, बिकॉज इफ़ यू स्लीप और आपने अभी खाना सिर्फ 1-2 घंटे पहले खाया है, then all of that food is going to go up to your windpipe and with the acid and digestive enzymes, और वो वापस से आपकी इन्फ्लेमेशन शुरू कर देगा लंग्स में। तो स्लीप से एटलीस्ट 3 या 4 घंटे पहले हैव योर मील एंड हैव लाइट डिनर मील्स, डोंट हैव हेवी डिनर मील्स, डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। द थर्ड वन इज टू प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। सबसे पहले आप मेडिटेट कर सकते हो सो एज टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। Second thing what you can do is start doing some breath work, Anulom Vilom, Kapalbhati. There are so many yoga asanas या yoga techniques जिससे आपकी lungs की capacity बढ़ जाती है and you start healing your lungs. The third thing what you can start doing is clearing the mucus from your airway passage. उसमें आप जल नीति कर सकते हो जिसमें एक कंटेनर होता है एंड एक रॉड होता है जिसमें आप गर्म पानी एंड पुट सम सॉल्ट इन इट और आप एक नॉस्ट्रिल में डालते हो और दूसरे नॉस्ट्रिल से वो बाहर आ जाता है। दिस इज़ नॉट बिन वेरी ईजी फॉर मी बिकॉज मैं इसको कोशिश करती हूँ पर मुझसे ये हो ही नहीं पाता है। आफ्टर दिस लॉकडाउन आई सीरियसली वुड हैव टू गो टू समवन कि मुझे ये सिखा दें कि कैसे होता है। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। द नेक्स्ट थिंग, बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, इज एक्सक्रीशन। इन एक्सक्रीशन आप जब भी आपके पेट में आपके इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होगा या आपने कुछ ज़्यादा खा लिया है तो उससे ब्लोटिंग हो जाता है, आपका स्टमक थोड़ा बड़ा हो जाता है और आपका डायफ्राम ऊपर पुश हो जाता है, ठीक है। आपके लंग्स की कैपेसिटी टू ब्रीथ काफ़ी कम हो जाती है कंपेयर टू नॉर्मल। सो व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेनेवर देयर इज अनडाइजेस्टेड फूड इन योर इंटेस्टाइन, आपको सबको क्लियर अवे करना है। अगर आपको किसी भी टाइप की कॉन्स्टिपेशन है सो स्टार्ट टेकिंग इसबगोल, आधे ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच एंड ड्रिंक इट। आपका जैसे ही स्टमक क्लियर होगा यू स्टार्ट फीलिंग कि आपके लंग्स बहुत ईजीली ब्रीथ करने लग गए हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट एंड दीज आर सम जनरल थिंग्स एंड ऑल्सो सम बेसिक थिंग्स जो मुझे कभी पता नहीं थी जिससे ठीक हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ देम हैव टू वर्क इकट्ठे। आप किसी भी एक चीज़ को करके दूसरी चीज़ छोड़ नहीं सकते हो। दे ऑल हैव टू वर्क इन बैलेंस, क्योंकि आधी चीज़ें बाहर से आधी चीज़ें आपको खुद करनी है। सो डू देम एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इफ दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू।